हाँ जी, बोलो जी। जी सर, आज के बजट के बारे में जो बजट अज का फाइनैंस मिनिस्टर ने पेश किया है तो वो एक बैलेंस्ड बजट है। और अगर ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਐਮਐਸਐਮਈ तो सानू एमएसएमई ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਖਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਲਕਮ ਸਾਈਨ। ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 200 ਲੈਗੇਸੀ ਕਲਸਟਰਸ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਆਊਟਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 10,000 crore on SME growth funds, which is quite nominal. We were expecting in lakhs, at least 1 or 2 lakh crore should be sanctioned as an outlay for MSME upgradation and MSME development. See, MSME is a backbone of every economy, be it India, be it Europe, Asian countries. It is growth driven. जो economy की growth है वो MSMEs ਦੇ ਨਾਲ है। I am slightly disappointed the way MSME has been treated in this budget, and Ludhiana being a hub of MSME, more than 1,25,000 registered units are there in Punjab। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰ most of them are in engineering industry, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ support level ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ liquidity of 700 crores for transaction ease and credit guarantee and linked GEM with other ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਕਮ ਸਾਈਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। the finance minister has spoken about CGTMSE scheme, how it will benefit the industry, but I want to put it on record that the success rate of CGTMSE scheme is not even 1%. My learned professionals are sitting here also। CGTMSE ਸਕੀਮ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਟੀਡੀਐਸ ਹੈ ਕਿ not even 1% people are able to get any benefit out of CGTMSE scheme। So this is nothing new। Ma'am has not touched anything new। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। The plus point or a good point about the budget is empowering women entrepreneurship. Rural urban body 1.40 lakh has been outlaid for urban body। Fiscal deficit nu below 4.4 te rakhan de layi ma'am has tried her best, and next outlay is 4.3%, which is also a very welcome sign। But how she proposed to do it, she has not expressed the ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨੀਚੇ। ਮੈਟ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ ਸਾਈਨ, ਵਿਚ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ ਸਾਈਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਰਵੀ ਜੀ ਔਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਮੀ ਟੀਅਰ 2 ਐਂਡ ਟੀਅਰ 3 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, which is not right। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ MSMEs ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਅਰ 2 ਔਰ ਟੀਅਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MSMEs ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੁਝ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ AI ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਬਿਗਰ ਆਊਟਲੇ ਫॉर AI ਐਂਡ ਸੋਲਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਡਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ ਲਾਈਕ CTRs ਐਂਡ R&D, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ
CTR है, R&D ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ITIs ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਪੀਟ। ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਏਡਸ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਮਿਸਮੈਚ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇਟ। ਔਰ all in all, if you ask me, engineering industry ਬਾਰੇ it is not a very healthy sign, it's not a very good budget, especially keeping in mind ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ PLI ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PLI 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। We are going in a global turmoil. Business is not in a very healthy position nowadays. ਔਰ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ MSME ਔਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਗੁੱਡ ਸਕੀਮਸ ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਔਰ MSME ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ US ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ ਐਕਸਪੋਰਟਸ going down day by day, this was the time government could have provided us some relief. Overall, Pankaj ji, budget ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲਾਈਕ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਬਟ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਰ ਵਾਜ਼ AI, ਸੋਲਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MSMEs ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? अच्छा बजट है जी, but could have been much better with some better policies and better outlay. The finance minister has not mentioned a single, in a speech, not mentioned a single outlay for any field like engineering industry ਦੇ ਲਈ, upgradation of technology ਦੇ ਲਈ, empowerment ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ outlay ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ somehow as an engineering for an engineering industry it is a disappointment. Overall ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? 4 out of 10. 4 out of 10. ओके, थैंक यू। चित भंडारी है। मैं इस बजट को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। इसमें बहुत 2-3 चीज़ें बहुत ही अच्छी हुई हैं जी। पहले तो उन्होंने जो ओवरसीज ट्रेवल के ऊपर जो TCS लगाया था, जिसका रेट आगे 5% भी था, 20% था, उसको कम करके 2% कर दिया, जिससे आपको ईज ऑफ बिजनेस मिलेगा। जो दूसरी चीज़ें इन्होंने की है, जो रिटर्न की जो हमने रिवाइज की डेट थी, वो 31/12 तक हम अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते थे, अब उसकी डेट बढ़ा के इन्होंने 31 मार्च कर दी है। जो तीसरी चीज़ इन्होंने अच्छी की है कि जो इंडिविजुअल फाइलिंग की ITRs की डेट थी वो 31 जुलाई होती थी, और जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज थी जिनका ऑडिट नहीं होता उनकी भी 31 जुलाई की थी, उसकी डेट बढ़ा के इन्होंने 31 अगस्त कर दी है। जो TCS और NRI के है जो काटना पड़ता था, उसके लिए TDS का नंबर लेना पड़ता था, अब उन्होंने बोल दिया कि TDS का नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप पैन बेस्ड ही डिडक्शन कर सकते हैं। जो एक मेजर उन्होंने जो चेंज किया है, उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को एक बड़ा सेटबैक दिया है। आगे मैट के ऊपर हमें क्रेडिट मिलता था। देयर वर 2 वेज ऑफ टैक्सेशन, वन इज नॉर्मल टैक्सेशन एंड वन वाज मैट। मैट में हायर टैक्सेशन थी, पर उन्होंने अब उसको फाइनल टैक्सेशन कर दिया कि जो मैट के ऊपर आप हायर टैक्स देते थे उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते थे, अब उन्होंने मना कर दिया। जो बैलेंस आपके पास मैट पड़ा हुआ है उसको 4 सालों के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं जी। एक उन्होंने बोला कि जो अपील फीस आपकी थी वो 20% आगे होती थी, अब उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया जी, और इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको अपील पे पीरियड के अंदर। तो ओवरऑल आई फील दिस बजट इज वेरी गुड। और फॉरेन एसेट्स जो हमारे डिस्क्लोज नहीं किए थे उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्लाइज किया है कि जिसकी फॉरेन इनकम डिस्क्लोज नहीं है तो एक नॉमिनल सा टैक्स दे के और फीस दे के पेनल्टी की शेप में आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। 6 मंथ्स का पीरियड दे दिया है। ऐसे ही उन्होंने फॉरेन एसेट्स के डिस्क्लोजर दे दिया। सो आई फील दिस बजट इज मोर लाइक अ रेशनलाइज्ड बजट, और आपको प्रोसिक्यूशंस और उससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। एंड आई रेट दिस बजट एज अ गुड बजट। सर एक ये भी बताया जा रहा था कि कोई एक फीस लगती थी उसको अब इन्होंने, जैसे फाइन लगता था उसको एक इन्होंने बहुत चेंज किया कि नॉन ऑडिट की जो पेनल्टी लगती थी आगे, उसका नाम चेंज करके इन्होंने फीस कर दिया है। तो सबको लगी तो सबको पर लगेगा, वो उसका जो सेक्शन का नाम है उसको पेनल्टी से चेंज करके उसको फीस में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो आपको देनी ही पड़ेगी वहां पे करके। आगे वो कहीं कुछ को लगती थी, अब सबको लगी जाएगी। बट इन्होंने जो बढ़ाया है SCT का रेट,
जो डेरिवेटिव्स के ऊपर है 0.02 से बढ़ा के 0.05 कर दिया, और ऑप्शंस के ऊपर जो एससीटी का रेट है 0.15 कर दिया। आई फील कि स्टॉक मार्केट में जो कैपिटल मार्केट की मूवमेंट है, इट विल बी अ ग्रेट सेटबैक फॉर द मार्केट। जो मार्केट सुबह ग्रीन में घूम रही थी, इस वक्त इट हैज मूव्ड इनटू द रेड और ब्लडी रेड हो चुकी है। 1000 पॉइंट ऊपर मार्केट गिरी हुई है, तो आई फोरसी कॉर्पोरेट के लिए नेगेटिव रहेगा। अदरवाइज फॉर इंडिविजुअल सेक्टर्स इट इज अ गुड बजट। आपकी प्रोसिक्यूशंस और पेनल्टीज को बचाया गया है। पिछली बार अगर बात करें तो वो प्लान 3 या 4 लेयर्स में जो बजट आया था, जो टैक्स लेयर आई, टैक्स रेट सेम है। टैक्स रेट्स में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया जी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि पार्टनरशिप फॉर्म्स का टैक्स रेट कम करेंगे, बट देयर इज नो चेंज। सिर्फ उन्होंने कॉर्पोरेट्स को सेटबैक दिया है कि जो मैट लगा दिया उसको फाइनल टैक्स बना दिया है। दैट इज द मेजर सेटबैक। अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन द टैक्स रेट्स वहां पे। हमें और क्या कहना चाहोगे जो आज का बजट था? I'm CA रविकांत गुप्ता। आज का जो बजट है, इस बजट के बारे में मेरा सबसे पहला जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जैसे कि हम पिछले 12 साल से सुनते आ रहे हैं कि ये सरकार जो है ना, इसकी शब्दावली बहुत अच्छी है। ये जो भी कुछ है ना, शहद में भिगो के, और बड़ी अच्छी शब्दावली। और आज भी वो हमारे वित्त मंत्री जो हैं वो अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज की वजह से, सरकार की पॉलिसीज की वजह से पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गई अभी। और दूसरी तरफ खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब ये या तो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं या पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गई। ऐसी मतलब ये वर्ड मैडम ने यूज किया अपनी उसके अंदर। जो कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं कि यूथ के ऊपर फोकस किया गया है कि यूथ की स्किल एनहांसमेंट के लिए हब्स बनाए जाएंगे। क्या, कहाँ बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, कि स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे पंकज जी भी बता रहे थे, इन्होंने कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करी है। और हम क्योंकि पंजाब में बैठे हैं, लुधियाना में बैठे हैं, लुधियाना हब है इंडस्ट्री का। एक बार भी मैडम ने पंजाब का नाम नहीं लिया पूरे बजट के अंदर कि पंजाब के लिए हम क्या कर रहे हैं। पंजाब के साथ और काफी सारी स्टेटों का नाम लिया और कुछ का नहीं भी लिया, लेकिन पंजाब का कहीं कोई नाम नहीं लिया। पंजाब की जो इंडस्ट्री है, जो साइकिल इंडस्ट्री है, जो कि जान है, जो साइकिल जो है आज भी एक गरीब का एक व्हीकल है, साइकिल इंडस्ट्री का कहीं कोई नाम नहीं लिया। और योगा के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़ी काफी ज्यादा मतलब प्रमोट करना चाहते हैं योगा को। अच्छी बात है, योगा हमारा युगों से चला आ रहा है, उसके बारे में फोकस किया गया। हाँ, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो सीए के हिसाब से काफी कुछ इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट भी नया लागू होने जा रहा है 1/4/2026 से, इनकम टैक्स के अंदर काफी कुछ स्ट्रीमलाइन किया है। जैसे एक अच्छा स्टेप ये है कि जहाँ पे प्रोसिक्यूशन छोटी छोटी बातों के ऊपर, हमारा जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन की प्रोविजन है, जबकि हमारे जो एसएससीज हैं, हमारे जो देश के नागरिक हैं, वो कहीं भी कोई जानबूझ के, जरूरी नहीं कि सारी जो मिस्टेक्स हैं, सारी जो गलतियां हैं वो इंटेंशनल हो, वो कई बार अनइंटेंशनल मिस्टेक्स भी होते हैं, उसमें भी प्रोसिक्यूशन की प्रोविजन थी। उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि उसको प्रोसिक्यूशन की जगह आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो पेनल्टी जो वो एक अच्छा स्टेप है, उसके हम वेलकम करते हैं एज एन प्रोफेशनल एंड एज एन सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। अच्छी बात है। और ओवरऑल जैसे कि बजट है, और एक ये बजट जो है, जो मुझे समझ आ रहा है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति जो वो स्टॉक मार्केट के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है, शायद आप लोग भी होंगे। तो शेयर मार्केट के लिए ये बजट बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आज की इस वक्त तो नजर आ रहा है, क्योंकि एसटीटी वगैरह जो है, जो उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए, जो जैसे 0.2 से 0.5% कर दिया। सो इट इज मोर देन डबल। सो इट विल बी ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर मार्केट। और उसके अलावा जो एमएसएमई है, आम जनता है, पार्टनरशिप फर्म्स है, उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है। इस सरकार का फोकस कॉर्पोरेट्स के ऊपर है, और कॉर्पोरेट्स में भी जो मीडियम साइज कॉर्पोरेट्स हैं या स्टार्टिंग लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं है। इनका कॉर्पोरेट्स के ऊपर, बड़ों के ऊपर कॉर्पोरेट्स के ऊपर फोकस है कि जितना भी जो बेनिफिट है, वो गेन है, वो बड़े कॉर्पोरेट्स को ही मिलता है। इसके अंदर जो बजट के अंदर जो प्रोविजंस की जा रही हैं, वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं, नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि मैं कह सकते हैं कि कितना कितने की ओवरऑल बड़े घरानों को फायदा, बड़े घरानों को ये बड़े घरानों को बेनिफिट देने वाला ही बजट है। बेसिकली जो बातें की गई है वो शहद में लपेट के की गई हैं कि हम यूथ के लिए भी करेंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी करेंगे, हम विकलांग के लिए भी करेंगे, हम फार्मर्स के लिए भी करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें कितना पैसा खर्च करेंगे, ऐसी कोई प्रोविजन स्पेसिफिक क्लियर कट नहीं है। पॉलिसी शुड बी क्लियर कट कि जी हम ये करेंगे और ऐसे करेंगे। हम आपकी, जैसे फार्मर्स की बात हो रही है, अब फार्मर्स के बारे में कि हम फार्मर्स की इनकम, हमारी ये सरकार जब आई थी, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ,
तो हमने जी फार्मर्स की इनकम डबल करनी थी, नहीं हुई, हम सबको पता है। लेकिन अब आज फार्मर्स की बात हुई, इस बजट के अंदर फार्मर्स की इनकम बढ़ाने की बात हुई, पंजाब का नाम नहीं लिया गया, जबकि पंजाब जो है वो फूड बाउल है हमारे देश का, ग्रीन रेवोल्यूशन देने वाला पंजाब है, और फार्मर की बात और पंजाब की बात ना हो, तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। थैंक